Hello students, we have studied about the scientific management principles given by F.W. Taylor. F.W. Taylor has not only given the principles of scientific management, which you have already studied, he has given some techniques of scientific management also. In this video, we will study about all those techniques. So first technique of scientific management is functional foremanship. According to Taylor, a single worker or supervisor cannot be expected to be an expert in all aspects. Thus, he advocated the appointment of 8 foremen to guide workers under planning and production department. And these 8 experts will be specialized in their jobs. According to Taylor, a single person cannot be expert in all aspects. वो सारे काम नहीं कर सकता है. That's why F.W. Taylor suggested that the whole factory, which is working under factory manager, that should be divided in 2 departments, planning and production department. Planning department consists of 4 experts, these 4 experts, and production department consists of these 4 experts. Here in the planning department, there is instruction card clerk, route clerk, time and cost clerk, and disciplinarian. And in the production department, there are 4 experts known as gang boss, repair boss, inspector, and speed boss. And all those 8 experts will instruct workers when the workers are performing their jobs. These workers will get instructions and directions from all these 8 experts. कोई भी उनको instructions और directions दे सकता है. You can see here F.W. Taylor ने इस टेक्निक में हेनरी फ्योल का जो प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, that is followed here. But one principle is violated, जिसमें वो कहते हैं, हेनरी फ्योल कहते हैं that for one person there should be only one boss. एक person को एक ही boss से orders मिलने चाहिए. But here workers are the subordinates and there are 8 superiors of those workers. Workers के superiors कितने हैं? 8. These people, all these people can give direction and instructions to workers. The unity of command principle is violated here. But for getting expertise, for getting the benefit of specialization, F.W. Taylor suggested this technique. Now, let us understand what is the work of these 8 experts. Under the planning in charge, there are 8 experts: route clerk, instruction card clerk, time and cost clerk, and disciplinarian. First of all, route clerk. Route clerk is responsible to specify the route of production. Production का route क्या होगा? Route क्या होता है? रास्ता. From starting point to the destination. Here in the factory, what is the starting point? Starting point is the raw material, purchasing of raw material till production of the finished product. So from starting to end, जो production है उसका route क्या रहेगा, वो कैसे होगा, कितने steps होंगे, उस पर क्या क्या काम होंगे, that is defined by route clerk. Because it is planning department, that's why they will plan for all these things. Second one, instruction card clerk. इसका काम है instructions plan करना. Workers will need some instructions and guidance to do their jobs. So these instructions and guidelines are designed by instruction card clerk. Time and cost clerk. इसका काम है प्लान करना कि कितना टाइम लगेगा एक टास्क को कंप्लीट करने में and what will be the maximum cost to be incurred in accomplishing one particular job. So time and cost clerk is responsible to prepare time and
कॉस्ट शीट, एक वर्क को करने में कितना टाइम लगना चाहिए और कितनी कॉस्ट इनकर होनी चाहिए, दिस इज़ प्लान्ड बाय टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। डिसिप्लिनेरियन, जैसा कि इसके नेम से ही क्लियर है, दिस पर्सन इज़ कंसर्न्ड विद द डिसिप्लिन इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए रूल्स बनाना, डिफरेंट पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस फ्रेम करना, सो दैट obedience and discipline can be maintained in the factory or in the business enterprise. Now, under the production department, here in the production department, यहाँ पर होगा actual production. So there are 4 experts in this department also. First is speed boss. इसका काम है work speed maintain करना, कहीं पर भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, वर्क स्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पीड अगर मेंटेन नहीं होगी देन टाइमली टारगेट्स कैन नॉट बी अचीव्ड। सो स्पीड मस्ट बी मेंटेन, सो दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब, इसलिए वो उसकी स्पीड मेंटेन करता है। गैंग बॉस क्या करता है, वर्कर्स के लिए मशीन्स और टूल्स को रेडी रखता है, ताकि वर्कर्स ये ना कह पाएँ कि वी डिडंट अचीव द टारगेट बिकॉज वी डिडंट गेट द मशीन्स एंड टूल्स ऑन टाइम। So gang boss is responsible for keeping machines and tools ready for the workers. Repair boss, अब workers को machines and tools मिल गए, workers उनको use भी करेंगे, so time to time they are overhauling, repairing, maintenance is also required. तो machines की जो oiling है, maintenance है, tools की जो repairing है, that is ensured by repair boss. तो उसका काम होता है कि machines और tools को हमेशा वर्किंग कंडीशन में मेंटेन करना। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप मशीन्स एंड टूल्स इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस। तो टाइम टू टाइम ये उनको चेक करते हैं, उनको रिपेयर करते हैं। और इंस्पेक्टर का काम है, इंस्पेक्टर तो पता ही है आपको इंस्पेक्टर क्या करता है, वो वॉच करता है सबको और चेक करता है कि वेदर द वर्क इज़ परफॉर्म्ड in time or not, that work is performed by the worker, that is quality work or not. So वो time to time उस काम की, products की quality को check करता है, so that quality of work can be maintained. So these are the 4 experts of production department. So 4 plus 4, these 8 experts will issue their instructions and directions to the वर्कर्स, कि कोई भी रूट क्लर्क वर्कर को रूट बताएगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क उसको इंस्ट्रक्शन बताएगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क को बताएगा कितने टाइम में पूरा होना चाहिए। डिसिप्लिनेरियन उसको बार बार इंस्ट्रक्ट करेगा टू मेंटेन द डिसिप्लिन। स्पीड बॉस उसको टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्ट करेगा फॉर मेंटेनिंग देयर स्पीड, जिससे टाइमली काम कंप्लीट हो। गैंग बॉस उसको बार मशीन्स एंड टूल्स ला कर देगा। रिपेयरिंग बॉस उसके पास आकर उसकी मशीन्स को रिपेयर करेगा। इंस्पेक्टर उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक करेगा। सो ऑल दीज 8 experts कैन कम्युनिकेट विद, दे कैन गिव ऑर्डर टू द वर्कर्स, and workers will have to decide, they will have to work according to the instruction of these 8 people. तो इस टेक्निक का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ दीज 8 experts, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, जिससे मिनिमम वेस्टेज होता है रिसोर्सेज का, एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट एक्सपर्टीज एडवाइस। बट बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस टेक्निक इज़ दैट वर्कर्स में बिकम कन्फ्यूज्ड, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किसके ऑर्डर्स को पहले फॉलो करना है, किसके बाद में। सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू decide that whose order should be obeyed first. So this will create dissatisfaction among the workers because unity of command principle is violated here. So in the next terminology which is used by the F.W. Taylor is mental revolution. मेंटल रेवोल्यूशन, जैसा यहाँ पर क्लियर हो रहा है इस वर्ड से, एक तरीके की मानसिक क्रांति है ना। उन्होंने इस मेंटल रेवोल्यूशन को क्यों इंट्रोड्यूस किया मैनेजमेंट में, बिकॉज ही हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट इन एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 forces
work together, that these are management and workers. These two forces work together, management and workers. और जनरली ये देखा जाता है कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. मैनेजमेंट वर्कर्स से कुछ एक्सपेक्ट करती है, बट एक नेगेटिव एटीट्यूड वर्कर्स के लिए रखते हैं कि वर्कर्स को आप कोई भी काम दो वो उसको हमेशा अपोज करेंगे, उसे टाइमली कंप्लीट नहीं करेंगे. दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन देयर सैलरी एंड द वेजेस, और वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं. दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन देयर पर्सनल गोल्स. उधर वर्कर्स से अगर आप बात करते हैं तो भी आपको एक नेगेटिव अप्रोच ही मिलता है फॉर मैनेजमेंट. वर्कर्स को हमेशा ये लगता है कि मैनेजमेंट उनको एक्सप्लॉइट करती है, उनकी डिमांड्स को कंप्लीट नहीं करती है, अननेसेसरी उनके ऊपर चेंजेस एंड डिफरेंट पॉलिसीज़ को इम्पोज किया जाता है. तो वर्कर्स ऑलवेज थिंक नेगेटिवली अबाउट मैनेजमेंट. बट आप सोच के देखिए कि क्या वर्कर और मैनेजमेंट अगर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो क्या इनको अलग कर दिया जाए? क्या इनको सेपरेट करने से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है? आंसर इज़ नो. वर्कर और मैनेजमेंट अलग नहीं हो सकते हैं. मैनेजमेंट अगर प्लान, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग कर रही है, ये सारे एक्ट जो मैनेजमेंट फंक्शंस में है दे आर परफॉर्मिंग. बट इफ़ ह्यूमन resources are not there, workers are not there, then on whom they will implement and by whom they will implement their plans. और वर्कर्स अगर ये सोचें कि मैनेजमेंट ही नहीं हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन में उनको ना काम के बारे में पता चलेगा, कैसे करना है ये भी पता नहीं चलेगा. सो द टारगेट्स and the whole organization cannot survive in the absence of one force, even in one force. दोनों बहुत ज़रूरी हैं. इसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो इन दोनों का नेगेटिव अप्रोच है एक दूसरे के लिए, दिस बिकम वेरी हार्मफुल फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग देम. मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं और उसी का रिज़ल्ट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक्स होती हैं, यूनियंस बन जाती हैं, प्रोडक्शन रुक जाता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ unwanted things started happening in the business organization. So this can be resolved by bringing a mental revolution in the mind of workers and management. ये सब कैसे दूर होगा? जब इन दोनों के बीच में एक मेंटल रेवोल्यूशन आ जाए, एक क्रांति आ जाए, एक ऐसा चेंज आ जाए जिससे कि एक दूसरे के लिए जो ये नेगेटिव अप्रोच रखते हैं दिस बिकम पॉजिटिव. ठीक है. सो उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट को अपना मेंटल स्टेट, अपना थॉट्स चेंज करने होंगे और उन्हें वर्कर्स को साथ लेकर चलना होगा, उन्हें वर्कर्स को सपोर्ट करना होगा, उनसे वर्कर्स से सजेशंस लेने होंगे बिफोर टेकिंग डिसीजंस. सो वर्कर्स उनको सपोर्ट करेंगे. दे विल हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि वर्कर उनको खुद से सपोर्ट करने लगे. ऐसे ही वर्कर्स को भी अपना मेंटल स्टेट चेंज करना होगा, उन्हें भी अपने थॉट्स चेंज करने होंगे कि मैनेजमेंट उनके ऑपोजिट नहीं है. उन्हें भी सोचना होगा कि इफ़ मैनेजमेंट इज़ अर्निंग सम प्रॉफिट अल्टीमेटली इट विल कम टू देम. ऐसा नहीं सोचना है कि प्रॉफिट अर्न होता है तो मैनेजमेंट ही सारा प्रॉफिट रख लेती है, वर्कर्स को कुछ भी नहीं मिलता है, वो फिर बोनस की डिमांड करने लगे, नहीं मिले तो स्ट्राइक पे चले जाए. नो, उन्हें सोचना होगा कि उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स तभी अचीव हो सकते हैं व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अचीविंग देयर टारगेट्स. अगर वो बिज़नेस ही प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है तो वो कैसे वर्कर्स को देगा? तो वर्कर्स को ये देखना है कि वो पहले वो भी मैनेजमेंट को सपोर्ट करें और उनके लिए एक नेगेटिव अप्रोच ना रखें. जनरली आप देखेंगे तो जापानीज़ वर्किंग कल्चर में if workers are demanding for workers are having some demand और वो अपनी डिमांड मैनेजमेंट के सामने रखते हैं और मैनेजमेंट उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं कर रही है
तो वो स्ट्राइक पे नहीं जाते हैं, प्रोडक्शन बंद नहीं करते हैं, बट दे प्रोड्यूस मोर, वो और ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और गेटिंग सिंपैथी ऑफ द मैनेजमेंट, जिससे मैनेजमेंट को ये लगे कि ये अपने पर्सनल गोल्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान नहीं कर रहे हैं। सो मैनेजमेंट भी उनके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच रखती है। So this kind of mental revolution must be brought in the mind of the workers and management. So it involves the changes in the attitude of workers and management. Both should realize the importance of each other and should cooperate with each other. दोनों को मानना चाहिए कि दोनों important हैं और एक दूसरे से cooperate करना चाहिए. Both should aim to increase the size of surplus. Managers should share their gains with workers while workers should contribute to increase profits. तो इससे क्या होगा, मेंटल रेवोल्यूशन अगर आ जाएगा तो मैनेजर को चाहिए कि वो अपने प्रॉफिट्स को वर्कर्स के साथ शेयर करें और वर्कर्स बिजनेस के प्रॉफिट अर्न करने में, इंक्रीज करने में हेल्प करें. सो दिस एटीट्यूड विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू बोथ द कंपनी एज वेल एज वर्कर्स. इससे दोनों के लिए प्रॉस्पेरिटी आएगी, वर्कर्स के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए. देन नेक्स्ट आर द वर्क स्टडीज़, जो टेक्निक्स FW टेलर ने दी. वर्क स्टडीज़ में फर्स्ट है मैथड स्टडी. किसी भी काम को करने के डिफरेंट मैथड्स हो सकते हैं. इवन इफ़ यू वांट टू गो टू मार्केट, तो डिफरेंट मोड्स यू आर हैविंग टू ट्रैवल टू द मार्केट. यू कैन गो बाय बाइक, यू कैन गो बाय कार, यू कैन गो ऑन फुट, यू कैन गो बाय रिक्शा और ऑटो, कैसे भी जा सकते हैं. बट देयर इज़ वन बेस्ट वे. मार्केट एरिया कंजस्टेड है, वो सारे सिचुएशंस, आपको कितना दूर जाना है, ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए उन सारे ऑल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे. तो ऐसे ही फैक्ट्रीज़ में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट मैथड्स हो सकते हैं. तो FW टेलर ने कहा कि बिफोर स्टार्टेड डूइंग एनी वर्क वी शुड कंडक्ट दिस मैथड स्टडी टू फाइंड आउट द बेस्ट मैथड फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब. उस काम को करने का बेस्ट मेथड ढूंढना चाहिए और उसके लिए हमें करनी चाहिए मेथड स्टडी. और ये कैसे होगी, हम उस काम को करने के डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सर्च आउट करेंगे, उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को टेस्ट करेंगे कि उन पर्टिकुलर सिचुएशन में उस जॉब नेचर के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट मेथड है. उनके प्रॉज एंड कॉन्स के बेसिस पर वी विल फाइंड आउट द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब. So the study is conducted to know the best method of doing a particular job. It helps in reducing the distance traveled by material, brings improvement in handling, transportation, inspection and storage of raw material and goods. ठीक है, मान लो एक टास्क है कि आपके पास जो एक्सेस प्रोडक्शन है उसका क्या करना है, उसको स्टोर कैसे करना है. तो उसके दो मेथड हो सकते हैं, या तो आप अपने वेयर हाउस में स्टोर कर लो या आप वेयर हाउस हायर कर लो, है ना. दो चीज़ें हो सकती हैं. या आप किसी एक होलसेलर से कांटेक्ट कर लो कि वो आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा और अपने वेयर हाउस में स्टोर करेगा. यू आर हैविंग 3 ऑल्टरनेटिव्स. तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपके पास कितना फंड है, आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उन तीनों के प्रॉज एंड कॉन्स देखो और उसमें से बेस्ट मेथड को सेलेक्ट कर लो. सो दिस इज़ मेथड स्टडी. मोशन स्टडी. मोशन मीन्स मूवमेंट्स. Motion means movements. So in this work study, FW Taylor suggested that कि जब भी हम किसी काम को करते हैं तो we have to do some movements. हमें कुछ ना कुछ movements करने होते हैं. From one place to another place, from up and down, बहुत सारे हमको movements करने होंगे. So जितने ज़्यादा movement हम करेंगे, आप जानते हैं कि उतना ही उस काम को करने में टाइम स्पेंड होगा. इट इज़ अंडरस्टूड. जितना ज़्यादा हम, सपोज़ आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बैठ के अपनी स्टडी टेबल पे, बट योर बुक शेल्फ इज़ फार अवे फ्रॉम योर स्टडी टेबल. बार बार आप बुक्स लेने जाओगे आओगे तो इट विल वेस्ट योर टाइम. ठीक है, अच्छा क्या है, आप अपना बुक शेल्फ और अपनी स्टडी टेबल ऐसी जगह पर अरेंज करें जिससे आपको बार बार उठना ना पड़े, इससे आपका टाइम सेव होगा. ऐसे ही बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में भी है वर्कर्स के लिए. अगर उन्हें बार बार प्रोडक्शन मशीन पर वो काम कर रहे हैं और उन्हें रॉ मटेरियल लेने के लिए बार बार स्टोर रूम में जाना पड़ता है, या उसको ऑन करने के लिए स्विच कहीं दूर है तो उसको ऑन ऑफ करने के लिए बार बार जाना पड़ता है, तो दिस विल क्रिएट अननेसेसरी मोमेंट्स. तो इन्होंने कहा है मोशन स्टडी में कि
This study involves close observation of the movement of body and limbs of an individual required to perform a job. इसमें मूवमेंट्स को हमें ऑब्जर्व करना है और ये स्टडी करना है कि उन मूवमेंट्स में से कौन से यूजलेस मूवमेंट्स हैं, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं, जिनसे प्रोडक्शन में कुछ भी इंक्रीज नहीं होता है. उन मूवमेंट की वजह से ऐसा नहीं होगा कि एक वर्कर अगर एक दिन में 5 यूनिट बना रहा है तो वो 6 बना लेगा. नो. तो ऐसे जो यूजलेस मूवमेंट्स हैं, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं, उन्होंने इस कहा है कि स्टडी से फाइंड आउट करो कि कौन से अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं और उनको एलिमिनेट कर दो from the whole process. So this the objective of this study is to find and eliminate wasteful movement among the workers के ऐसे movements को find करना जो कि unproductive हैं और उनको उनके process से eliminate कर देना. This is motion study. Then time study. Time study में इन्होंने बोला कि time study is the technique of observing and recording the time required by a workman of reasonable skills and ability to perform each element of the task in a job. टाइम स्टडी का काम है कि एक टेक्निक है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक वर्कर अपने काम को करने में कितना टाइम लेता है. ठीक है. तो जब हम ये स्टडी करेंगे तो हम ये फिक्स कर पाएंगे कि एक काम को करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए. what should be the standard time for performing a particular job. इसके लिए वो स्टॉप वॉच का यूज़ कर सकते हैं. जैसे आपके स्कूल में जब रेस वगैरह होती हैं, कोई स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, तो स्टॉप वॉच का यूज़ किया जाता है कि 400 मीटर रेस कितने टाइम में आपको कंप्लीट कर लेनी है इफ़ यू वांट टू विन द मैच. तो जब आपका प्रैक्टिस चलता है तो दैट सेम थिंग इज़ विद द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. तो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो लोग काम को लेकर बैठे रहेंगे, टारगेट्स कभी अचीव ही नहीं हो पाएंगे. तो स्टैंडर्ड टाइम मस्ट बी फिक्स्ड और वो किसकी हेल्प से होगा? टाइम स्टडी की हेल्प से. तो एक गिवन कंडीशन में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, दिस इज़ चेक बाय टाइम स्टडी. देन फटीग स्टडी. फटीग का मतलब होता है थकान. ठीक है. तो एक पर्सन फटीग दोनों तरह की हो सकती है, फिज़िकल भी और मेंटल भी. तो इस स्टडी में F.W. टेलर ने कहा कि हमें ये देखना है कि वर्कर कितनी जल्दी फिज़िकली और मेंटली थक जाते हैं, कितना जल्दी वो फटीग फील करने लगते हैं. उनको री एनर्जाइज करने के लिए उनको टाइम टू टाइम रेस्ट इंटरवल्स मिलने चाहिए. आप लगातार किसी पर्सन से काम कराते रहोगे, कुछ टाइम के बाद वो थक जाएगा और उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी. तो फटीग स्टडी में हमें ये देखना है कि वर्कर्स को कितने रेस्ट इंटरवल्स मिलने चाहिए और कितना टाइम का रेस्ट इंटरवल मिलना चाहिए. सो दिस स्टडी इज़ हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग फटीग अमंग द वर्कर्स. तो इसके पर्पस 2 हैं. 2 पर्पसेस आर देयर. रेस्ट इंटरवल्स के नंबर कितने होने चाहिए एंड रेस्ट इंटरवल का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए. ठीक है. तो जहाँ पर एक पर्सन फिज़िकल वर्क ज़्यादा करता है वहाँ पर जो रेस्ट इंटरवल है वो लंबा होना चाहिए, ताकि उसकी जो फिज़िकल फटीग है, शरीर जो थक गया है, वो एनर्जी रीगेन कर पाए. और जहाँ पर मेंटल फटीग होती है, जहाँ पर लोग अपनी थिंकिंग को, अपने थॉट्स को, मेंटल एबिलिटीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं, वहाँ पर रेस्ट इंटरवल्स छोटे होने चाहिए बट फ्रीक्वेंट होने चाहिए, जिससे कि वो फिर से रिफ़्रेश फील करें और अपनी एनर्जी को रीगेन कर लें. दिस इज़ फटीग स्टडी. देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर द डिफरेंट फैक्टर्स. एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, प्रोडक्शन की हो सकती है, सेल्स की हो सकती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी हो सकता है, रॉ मटेरियल है, टाइम है, मेथड्स हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर देयर. और इन सब के लिए स्टैंडर्ड्स फिक्स करना कि ये एक एक्सपेक्टेड टारगेट है, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है या एक्सपेक्टेड लाइन है फॉर क्वालिटी, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड. तो हर चीज़ के लिए स्टैंडर्ड है. वेट्स के लिए स्टैंडर्ड होता है, टाइप के लिए स्टैंडर्ड, साइज़ के लिए स्टैंडर्ड.
आप देखेंगे कि एक टूथपेस्ट का ट्यूब 250 ग्राम का ट्यूब अगर आता है कोलगेट का, तो आप कितने भी पैकेट्स आप उठा लीजिए, कितने भी ट्यूब्स आप उठा लीजिए, सबके सेम साइज़, सेम डिज़ाइन, सेम क्वांटिटी, सेम काइंड ऑफ कंटेंट यू विल गेट इन ऑल ट्यूब्स। ऐसा तो नहीं किसी में 2-3 ग्राम कम या ज़्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा सेम विद द क्लोथ्स ऑल्सो, इफ़ यू आर बाइंग अ शर्ट ऑफ नंबर 32, तो आपको उस कंपनी के 32 साइज़ के सारे शर्ट्स एक जैसे ही मिलेंगे, और सेम कलर है तो कलर बिल्कुल सेम मिलेगा। और क्योंकि क्लोथ्स हैं तो कलर में भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की शर्ट्स हो सकती हैं, बट द साइज़, कलर में भी डिफरेंट, बट साइज़ इफ़ इट इज़ नंबर 32 तो सबका साइज़ एक जैसा ही होगा ऑफ द सेम ब्रांड। तो दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक, इसका ताकि एक ही जैसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हों। प्रोवाइड फॉर इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट एंड प्रोडक्ट्स, अगर कोई चीज़, एक चीज़ ख़राब हो जाती है तो आप उसको चेंज कर पाओ। आपके मशीन्स या घर में वॉशिंग मशीन या मिक्सर ग्राइंडर, टीवी, कुछ चीज़ें अगर ख़राब हो जाती हैं, कोई एक पार्ट आपको चेंज कराना है तो वो इजीली चेंज हो सकता है, क्योंकि वैसा ही सेम स्टैंडर्ड पार्ट कंपनी बना रही होगी। आपके उस प्रोडक्ट में से वो पार्ट निकाल देंगे जो डैमेज हो गया है या ख़राब हो गया है, और आप उसकी जगह दूसरा पार्ट लगा देंगे। ठीक है, टू सेटअप द स्टैंडर्ड फॉर एक्सलेंस एंड क्वालिटी इन मटीरियल एंड टू सेटअप द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना मतलब प्रोडक्ट लाइन को सिंप्लीफाई करना, मतलब उस प्रोडक्ट लाइन में जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मार्केट में बहुत रेयर डिमांड होती है या होती ही नहीं है, कुछ ऐसे साइज़, कुछ ऐसी वेराइटीज़, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी मार्केट में बहुत रेयर डिमांड है, उनको वो अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में से एलिमिनेट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर शू परचेज़ करने जाते हैं तो शू के जो साइज़ आते हैं, दीज आर 5, 7, 9, these kind of size are available in market। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है व्हेन वी बाय शू, तो हम जब 5 नंबर का शू ख़रीदते हैं तो 5 नंबर का शू हमको टाइट आ रहा है, आपने नेक्स्ट साइज़ मांगा, उसने 7 दिखा दिया, 7 आपको लूज़ आ रहा है, आप 6 मांगते हैं, है ना, तो आप कहेंगे कि इन दोनों के बीच का साइज़ है, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल। क्यों नहीं अवेलेबल होता है? बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज़ हैविंग वेरी रेयर डिमांड इन मार्केट। तो ऐसे ऐसे 5.5, 7.3, दीज काइंड ऑफ नंबर ऑफ शू आर नॉट अवेलेबल इन मार्केट, क्योंकि इनकी डिमांड मार्केट में नहीं होती। और अगर मार्केट में डिमांड बहुत कम है और उसके लिए वो पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो करें और उसको प्रोड्यूस करें, एंड देन दैट प्रोडक्ट इज़ नॉट सेलिंग इन मार्केट, तो व्हाट इज़ द नीड टू प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो वो ऐसे जो अनवांटेड साइज़, अनवांटेड वेराइटीज़ हैं, उनको अपने प्रोडक्ट लाइन में से हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड simplification. So simplification refers to elimination of unwanted varieties, size, product and dimensions. In other words, simplification means optimum utilization of resources like man, machine and material through uninterrupted run and fewer machine stoppage. It aims at discarding unnecessary diversity of product. Unnecessary diversity को हटा देते हैं अपने प्रोडक्शन में से। It helps in reducing labor, machine and tools. इससे हमारा लेबर का खर्चा, मशीन्स का, रॉ मटेरियल का खर्चा कम हो जाता है। दस सिंप्लीफाइंग रिड्यूस स्टॉक भी कम हो जाएगा। फिर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा हैव इम्प्लीमेंटेड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन इन देयर वर्किंग, विच कैन बी एविडेंस्ड फ्रॉम देयर लार्ज शेयर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव market. Not only Nokia and Microsoft, every company follow these technique of standardization and simplification. I have given example, Colgate में आप देख लीजिए, या Panasonic ले लीजिए, LG ले लीजिए, every company is following these techniques.